Okay, now can you hear me? Hello, can you hear me? Yes, sir. Yeah. Okay. So now I think everything is well settled down, and we can start drawing the problem of deep and strike. So the problem is find out the deep and strike of point 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 P 23 32 75 23 32 75. Then next point is point Q 45 10 100. And third point is R 71 47 71 47 66. We will have to find out the deep and strike of this particular 3 points: P 30 23 32 75, Q 45 10 100, and R 71 47 66. Okay, so you must have to draw first of all one line vertical and second line horizontal. This line must be faint one, and then we will start establishment of the points. हम अब क्या करेंगे? Point establish करेंगे. First point which we will establish is P 23 32 75. Okay, so the first point is P 23 32 75. लेकिन पॉइंट एस्टेब्लिश करने से पहले आपको यहां डिस्टेंसेस मार्क करने पड़ेंगे. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. Similarly, you will have to mark the distances on horizontal axis also. 20 30 40 50 60
70, 80, 90. And then what is the first point? What is the first point? What is the first point? Hello? Can you hear me? Yes, sir. What is the first point then? P. P. And what are the coordinates of P? 23, 32, And 75. 75, right? So you will have to take 23 mm in this direction. And then 32, 23 will come somewhere here, and then 32, and then you will have to find out the 75 point. Okay, in this way you will have to establish your points. The sequence you are knowing, so let us establish these 3 points. First point 23, 32, 75. So मैं इस वर्टिकल एक्सिस से 23 mm यहां आता हूं, देन 32 यानी पहला पॉइंट मेरा होगा यहां, एंड देन 75, 40, 50, 60, 70 एंड 75 उसके एग्जैक्टली ऊपर होगा. So this point I'll name as point P dash. ऊपर का पॉइंट P dash होगा, नीचे का पॉइंट P होगा. Boys, what is your next point? P point तो establish हो गया. Next point. Q point. Q point. Coordinates 45, 10, 100. 100. Yes. So left side you will have to go 45, means here. 10, 20, 30, 40, 45. Then 10 means your point will come here. And then next point is at 100. So this is 75, 80, 90, and 100. This point is your point Q dash. This point is your point Q. Then we are in search of point R. Boys, tell me which are or what are the coordinates of point R? 71, 47, 66. 71, 47, 66. So 71 we will go in a right hand direction. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, and 71. Then 47, 10, 20, 30, 40, and 47 means somewhere here you will get your point. And next point is up 66. So this is your point R dash, and this is your point R. Then we are going to join these 3 lines and we will establish a triangle. P to Q, P dash to Q dash, P dash to R dash, and R dash to Q dash. And then
P to Q, Q to R, and P to R. So your triangle will be observed in this way. ऐसे आते हैं आपके triangle? Yes, sir. Yeah, good. Now, then you will have to draw an XY line passing in between these two triangles. इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच में पास होती हुई एक XY लाइन आपको ड्रॉ करनी है. And you will have to name it as a X and Y. Okay. So friends, now the first step according to our procedure is find out an horizontal line above XY. Above XY, can you find any horizontal line? आपको XY के ऊपर कोई horizontal line दिखती है क्या? P dash to Q dash, Q dash to R dash और P dash to R dash. No. No. No, sir. अगर दिखती नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? कंस्ट्रक्शन करना चाहिए. अब यहाँ का एक जो कॉर्नर है, लास्ट टाइम में वो कॉर्नर राइट हैंड साइड को आया था, अब यहाँ कॉर्नर लेफ्ट हैंड साइड को मुझे मिला है. यहां से मैं क्या करता हूं, उसके सामने के एज पे एक परपेंडिकुलर लाइन डाल देता हूं जो XY लाइन को पैरेलल होगी. ओके, PQRS, मैं इसे नाम देता हूं S डैश. I had given name to this particular point as a S dash. Okay, and now I will extend this line in downward direction. अब S dash जो पॉइंट है वो कौन से दो पॉइंट के इन बिटवीन है? कौन से दो पॉइंट के बीच में S dash है? Q dash R dash. यस, तो इसका जो टॉप व्यू होगा S पॉइंट का वो Q और R के बीच में होगा. कहां होगा? Q और R के बीच में होगा. I'll name it as a yes. और हमने किस कॉर्नर से शुरू किया था? P कॉर्नर से शुरू किया था. तो मैं क्या करता हूं, ये जो लाइन है वो P तक ले जाता हूं. ओके, अब डीप निकालने के लिए मुझे एक्सटेंड करनी पड़ती है ट्रू लेंथ, तो मैं क्या करता हूं, इस साइड में एक्सटेंड करता हूं. This line is my strike line. ये जो मेरी लाइन है, ये लाइन मेरी कौन सी लाइन है? ये मेरी स्ट्राइक लाइन है. यानी कि मैंने क्या किया, पहले देखा कि कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है क्या, नहीं है तो उसके एक कॉर्नर से आगे की आर्म पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल दी, वहां पॉइंट को नाम दे दिया, वो पॉइंट नीचे ले लिया और फिर से कॉर्नर में पास किया. अब ये स्ट्राइक लाइन मेरे पास है तो मुझे स्ट्राइक का एंगल मालूम करना है. तो मैं एंगल कैसे मालूम कर सकता हूं? व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रॉ अ बियरिंग लाइन ओवर हियर. थोड़े से ओपन स्पेस में यहां हम बियरिंग लाइन मार्क कर देंगे. कहां भी आप मार्क कर सकते हैं, एनीवेयर ऑन दैट लाइन बाय लुकिंग टुवर्ड्स स्पेस. दिस इज नॉर्थ,
this is south, here west, and here east. Am I correct? No. Here there will be east. No, west is going to be here. Paschim. East will be here. And now you can find out the bearing of this particular line. इस लाइन की जो बियरिंग है वो बियरिंग आप यहां फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो ये एंगल जो है, ये लाइन जो एंगल बना रही है, दिस एंगल इज योर बियरिंग एंगल. either this angle or this southwest angle. ओके, ये जो एंगल है वो आपके बियरिंग का जो एंगल है वो स्ट्राइक एंगल है. देन कैन यू टेल मी व्हाट इज योर स्ट्राइक एंगल? व्हाट इज योर स्ट्राइक एंगल? Have you drawn it? Hello? Have you drawn it? Yes, sir. What is your strike angle? 22, 23 LA. How it can be 22, 23? You will have to measure it either from north or from south. Have you forgot the concept of bearing? साउथ या नॉर्थ को हम मेन मानकर मेजर करते हैं. 81. 81. 81. 80, 81. 81. Okay, boys, or you have not drawn, just made this particular? 85, sir. Absolutely correct. It will be 85. The strike angle is 85. वो अगर ज्यादा आना चाहिए तो मैक्सिमम 80 to 83 तक आना चाहिए. देखिए आपने बेयरिंग, यस करेक्ट, मेरा 84 डिग्री आ गया है. ओके, सो दिस पर्टिकुलर एंगल इज योर स्ट्राइक एंगल. ये बड़ा वाला एंगल जो होता है साउथ से या नॉर्थ से मेजर किया हुआ, वो एंगल आपका स्ट्राइक एंगल होता है. ओके, नाउ स्ट्राइक हमने जो है निकाल ली है, स्ट्राइक का एंगल निकाल लिया है. नाउ वी विल हैव टू ड्रॉ दी डीप एंगल. तो डीप के लिए क्या करना है? ये जो स्ट्राइक लाइन है वो एक्सटेंड करनी है. हम लेफ्ट हैंड साइड में एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट जो हैं उनके लिए हमने यहाँ एक्सिस ले लिए हैं. तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में उसे एक्सटेंड करते हैं. एंड देन वी विल ड्रॉ एन ऑक्सिलरी प्लेन x1 y1 परपेंडिकुलर टू इट. पर्पसफुली आई एम ड्रॉइंग इट इन अ डार्क वे. ये देखिए परपेंडिकुलर वे में हमने x1 y1 यहाँ ड्रॉ किया है. x1 and this is y1, but you must have to draw it with the faint line and then extend the point R and Q in this way.
आर और क्यू के जो प्रोजेक्टर हैं वो x1 के बियॉन्ड हम ले जाते हैं। तो अब हमें डिस्टेंस कौन से मार्क करने हैं इस पे? XY लाइन से P डैश, Q डैश, S डैश, R डैश के डिस्टेंस लेने हैं, या हमें XY लाइन से P Q R S के डिस्टेंस यहां लेने हैं? कौन से डिस्टेंस लेने पड़ेंगे? XY के ऊपर के डिस्टेंस लेने हैं या XY के नीचे के डिस्टेंस लेने हैं? हेलो, अनिकेत बराटे, आर यू देयर? अनिकेत बराटे, यस सर। अब डिस्टेंस कहां के लेने हैं हमें? x1 y1 के ऊपर एज व्यू लेने के लिए डिस्टेंस कहां से लेने हैं? XY लाइन के ऊपर के लेने हैं या XY लाइन के नीचे के लेने हैं? ऊपर की। Absolutely correct. Then you first of all take extreme left point, that is R. R का डिस्टेंस ले लीजिए, कम है, छोटा है, मैंने ट्रिक बताई थी आपको, ये R मार्क कर दिया, यहां नेम दे दिया इसको R1, और लास्ट पॉइंट Q का, so this is the Q distance and you will have to mark the Q. तो Q मार्क कर दीजिए इधर, और क्या कर दीजिएगा, R1 और ये Q1 जोड़ दीजिएगा। And here you give the name Q1, और ऑब्वियसली आपका जो बीच में का पॉइंट होगा वो कौन सा होगा? P1 S1। तो यहां हमें इसका एज व्यू मिल गया, वी रिसीव्ड एज व्यू। अब हमें डीप का एंगल पता करना है, तो डीप का एंगल हम कैसे मेजर करेंगे? ये जो R1 पॉइंट है वो R1 पॉइंट का X1 Y1 से जो एंगल है वो एंगल हम मेजर करेंगे, यानी कि हम मेजर करेंगे ये एंगल वाला, दैट विल बी योर डीप एंगल। What is your deep angle? 43। 40. Yeah, it is around 43. ओके, और मुझे बताइए कि ऊपर के डायरेक्शन में ये एज व्यू x1 y1 को नजदीक जा रही है या नीचे के डायरेक्शन में नजदीक जा रही है? ये जो R1 Q1 लाइन है वो XY के नजदीक ऊपर के साइड में है या नीचे के साइड में है? अबव। तो हमें क्या करना है, स्ट्राइक लाइन पे बस एक एरो कर देना है कि ये अबव के डायरेक्शन में नीचे है। ओके, और अगर आपने यहां फिर से बियरिंग बना दी इस पॉइंट पे, तो कौन से क्वाड्रेंट में आता है? नॉर्थ वेस्टर्ली क्वाड्रेंट में आता है। ओके,
इस ऐसे आता है नॉर्थ के और वेस्ट के बीच में, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन हम यहां लिखेंगे, डीप डायरेक्शन इज इक्वल टू नॉर्थ वेस्टर्ली, deep direction is north westerly, deep direction is north westerly। हो गया। So this is the way to finding out deep and strike। ओके, अगर आपको प्लेन दिया है, अब यहां ट्रायंगल दिया है, वो आपको स्क्वायर दे सकते हैं, रेक्टेंगल दे सकते हैं। ओके, सो दिस इज द वे टू कंप्लीट डीप एंड स्ट्राइक। पहले आपको हॉरिजॉन्टल लाइन है क्या चेक करनी है। अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन वहां है तो आपको आगे का कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन वहां नहीं है तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी, और वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के बाद उसको आपको नीचे लेना पड़ेगा और फिर से उसी कॉर्नर में से उसको पास करना पड़ेगा। ओके, अब वो पास करने के बाद उसे एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये जो लाइन आएगी वो आपकी स्ट्राइक लाइन होगी। स्ट्राइक लाइन पे आपको बेयरिंग बनाना है और नॉर्थ या साउथ से रिस्पेक्टिव उसका एंगल मेजर करना है। मेजर किया हुआ एंगल आपको वहां लिख देना है एज अ स्ट्राइक एंगल। देन you will have to extend strike line, you will have to draw x1 y1 perpendicular to it, and then you need to complete this particular problem by applying the distances above xy line। आपको एज व्यू मिलेगा, एज व्यू मिलने के बाद आपको वो एंगल x1 y1 के साथ कितना करता है वो लिखना पड़ेगा। दैट विल बी योर डीप एंगल, दिस एंगल इज योर डीप एंगल, और ये डीप एंगल ऊपर की तरफ नजदीक है या नीचे की तरफ नजदीक है आपको देखना है, और वहां एक एरो बनाना है, और उस एरो को बेरिंग के डायग्राम में डाल के डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट है या साउथ वेस्ट है या साउथ ईस्ट है या नॉर्थ वेस्ट है, ये डायरेक्शन वहां लिख देनी है। हैव यू कंप्लीटेड दिस प्रॉब्लम? हेलो? Yes, sir. Okay, so I will clear it, and now we will solve one another problem. Okay, draw one triangle with me. So एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दीजिए। ये साइड होगी 50, ये भी साइड होगी 50, दिस वे। ये साइड 50 होनी चाहिए, ये साइड 50 होनी चाहिए। इसके बाद इसके नीचे x1 y1 लाइन ड्रॉ कर दीजिए ट्रायंगल कंप्लीट करके।
इस पॉइंट को नाम दे दीजिए ए डैश, इसको नाम दे दीजिए बी डैश, और इसको नाम दे दीजिए सी डैश। अब ए के प्रोजेक्टर के नीचे 10 mm पे ए पॉइंट एस्टेब्लिश कर लीजिए। कर लिया? कर लिया? यस सर। ओके। यस सर। अब आपको क्या करना है, XY लाइन के नीचे $40 mm पे बी पॉइंट एस्टेब्लिश करके लेना है। और सी पॉइंट के नीचे 20 mm पे सी पॉइंट एस्टेब्लिश करके लेना है। डोंट राइट द डायमेंशन ओवर देयर, डायमेंशन मत लिखिए, सिर्फ ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। और ये ए बी और सी पॉइंट जो है जोड़ दीजिए। ओके, ये आपकी डायग्राम बन गई। यस। हाँ, नाउ वी विल हैव टू फाइंड आउट डीप एंड स्ट्राइक ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। इस लाइन की डीप और स्ट्राइक हमें ड्रॉ करनी है। सो व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप? हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है? What is our first step? Horizontal line. Yes, to find out the horizontal line. So what is our first step? Horizontal line. Yes, finding the horizontal line. और अगर horizontal line नहीं होगी तो एक कॉर्नर से हम horizontal line निकाल देंगे। तो यहां देखिए कि आपकी horizontal line है क्या यहाँ? Yes sir. Which line is horizontal one? Boys, which line is horizontal one in a front view?
बॉयज, विच लाइन इज हॉरिजॉन्टल लाइन इन अ फ्रंट व्यू? फ्रंट व्यू में हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है इस ट्रायंगल में से? A dash C dash. A dash C dash is the horizontal line. It means you have no need to draw horizontal line here. यही आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है. तो A to C ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये जो C पॉइंट है वो C पॉइंट हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ ले लेंगे, और ये जो AC लाइन है उसे एक्सटेंड कर देंगे. यानी कि ये जो AC लाइन है यही लाइन आपकी हो गई है कौन सी लाइन? स्ट्राइक लाइन. हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ढूंढनी पड़ती है, लेकिन यहां ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन का जो टॉप व्यू है वो टॉप व्यू होगा हमारी स्ट्राइक लाइन. ओके, हमारी कौन सी लाइन होगी वो? स्ट्राइक लाइन. यस. नाउ यू विल हैव टू फाइंड आउट द स्ट्राइक एंगल. तो स्ट्राइक एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस स्ट्राइक लाइन पे थोड़ा दूर यहां एक बियरिंग बना देंगे, बियरिंग मार्क. Okay, and we will name it. This is, yes, tell me, this is north. North के बाद South. south. This is east, and this is west. And now you will have to measure the angle either from the north or from south. This will be your strike angle. ये जो एंगल है ये एंगल आपका होगा स्ट्राइक एंगल. Boys, tell me what is the strike angle? 78. 78. Girls, 80. how much? 80. 80. Means close to 78. Okay. Then we want to find out the deep line and deep angle. And to find out the deep line or deep angle, what do you require? You require an edge view. तो मैं क्या करूंगा, एज व्यू बनाने के लिए पहले इस एक्सटेंडेड स्ट्राइक लाइन को परपेंडिकुलर एक क्या बना दूंगा, x1 y1 बना दूंगा. And then I will extend this particular projector of B in this way. Okay. अब मुझे डिस्टेंस कहां से लेने हैं? Anybody from boys? अबव XY लेने हैं या बिलो XY लेने हैं? हेलो, डिस्टेंस कहां से लेने हैं मुझे?
अबव XY डिस्टेंस लेने हैं A1 B1 C1 डालने के लिए, या बिलो X1 XY लेने हैं? Above. above अबव XY लेने हैं। तो अबव XY आप देख सकते हैं A और C ये जो हैं वो इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि सेम डिस्टेंस पे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं A और C का प्रोजेक्टर भी एक ही है। तो यहाँ आपको पॉइंट मार्क करना है A1 C1. This point is A1 C1. And then you need to take the distance of B. आपको ये B का डिस्टेंस लेना है और यहाँ B के प्रोजेक्टर पे मार्क करना है। And you will have to make this line dark, which is nothing but your edge view. ये आपका edge view है। This is your edge view. अब आपको क्या करना है, एज व्यू को एक्सटेंड करना है। नीचे की तरफ जहां वो X1 Y1 को क्लोज जाता है। And you need to measure this angle as a deep angle. ये जो आपका एंगल है वो एंगल है डीप एंगल। कैन यू टेल मी व्हाट इज योर डीप एंगल? 60 60 गर्ल्स? $65. 65. Just to check it out whether you have drawn correct projector. इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए। बॉयज, एनीबडी एल्स? बॉयज साइड? एनीबडी एल्स? 58. श्री प्रसाद बड़वे? श्री प्रसाद बड़वे? So here today we have drawn deep and strike. तो सीक्वेंस क्या है, पहले आपको स्ट्राइक लाइन निकालनी है, उसके बाद स्ट्राइक का एंगल निकालना है, फिर एज व्यू निकालना है, फिर डीप एंगल निकालना है और डीप डायरेक्शन निकालनी है। ओके, सो राइट डाउन to find out deep and strike, to find out deep and strike, to find out deep and strike, number one, to find out deep and strike, number one, draw strike line, draw strike line, number two, strike angle, number three, edge view, edge view, number four, deep angle, and last, deep direction, deep direction. So in this way, this unit number 2 we have completed. Next lecture onwards, we will move towards unit number 3, projection of solid. Okay, it is similar like a plane, but you need to draw many things at a time. Okay,
So next lecture, we will start the solid. And we can finish this solid very much fast because it is similar. Its solution is very similar to this plane only. But in plane, we were drawing two-dimensional object, and in solid, we need to draw three-dimensional object. Okay, so I'll stop